So a few weeks ago I uploaded a video on my channel. So that was about if you are willing to join ISER, if you want to join ISER, then some things that I have shared in that video that you must know. If you want to come here, if you want to pursue it as a career. Then after that मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया. Then I got a common question. जितने भी कमेंट्स थे उसमें से एक कॉमन क्वेश्चन था सारे बच्चों का. And if you have not watched that video, then link is here in the I button, so you can watch. Then I can guarantee you, or okay, so if you watch that video, you will get a same question, like same doubt, कि आपको भी फील होगा कि हाँ ये चीज़ हमें जाननी चाहिए. Okay, so that is the main motto for making this video. अगर आप वो वीडियो देखेंगे then you can definitely relate why I am making this video. So in this video, so the common question was, so what is research, how it is done, what do you do, okay, and most important thing, how will I get to know if I am interested in research or not. हमें कैसे पता चलेगा कि I myself personally am interested in research or not, ये हमें कैसे पता चलेगा. Then okay, so इस वीडियो में हम यही कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. I'll be telling you about these things in this video. So research क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं. Research is a kind of finding solution or gaining knowledge, or I should say work on something. And what is that something? Something is a problem. Okay, कोई problem है, then it is a process of finding the solution for it. Okay, so research ऐसा नहीं है कि एक problem है उसका solution मिलना ही चाहिए, ऐसा नहीं है. There can be steps, जो steps के through आप work कर सकते हैं. Okay, so that steps अगर आप मिला दें तो एक solution बनेगा एक problem का. Okay, let's take an example. If we talk about the smallpox. Okay, so smallpox was a very dangerous disease in the past. Okay, बहुत like deadly disease था. Then उसके ऊपर researchers ने उस virus के ऊपर study की. Okay, then they started finding the solution for it. So it's not just about finding a solution but also about gaining knowledge about something. Okay, आप किसी चीज़ का knowledge ले रहे हैं, आप वायरस के ऊपर study कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं. For what? Because we have to eradicate that. Okay, हमें उसको ख़त्म करना है. So we are doing the same. Okay, कोई problem है उसका हमें solution find करना है, but that can be in the steps. तो सबसे पहले उस वायरस की study की गई कि होता क्या है, कैसे होता है. Then उसके ऊपर जो है वो वैक्सीन बनाएंगे. So जो वायरोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये सारा काम किया. So who were they were just researchers. वो भी researchers है. So it is not just baseline, or I should say a very crude way of saying what is research. अब हम क्या करते हैं? Let's see. So हम, as I have said, research is about the finding solution to the problem. We really don't do this thing. हम as a graduating student, we don't do the same. We are the students. Okay, we are not researchers. So when you enter here, you are student. You are here to study. You're here to gain knowledge about something you will have to do in your future. Okay, so हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ कुछ बेसिक चीज़ें उसके ही बारे में सीख रहे हैं. Okay, हम वही चीज़ें सीख रहे हैं जो हमें फ्यूचर में काम आएंगी. So यही सब चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं. ओके, जैसे कि लैब्स में काम करना, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करना, दैट कैन बी बेसलाइन और कैन गिव यू एक्सपीरियंस. ओके, आप अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखेंगे. लाइक बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आपको सिखाया जाएगा कि ब्यूरेट कैसे फील करते हैं, पिपेट को कैसे यूज़ करते हैं. सो ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ आप लर्न करेंगे. ओके, अब अगर आपको रिसर्च करना है, देन आप जब PhD करेंगे देन यू विल डू अ प्रॉपर रिसर्च. ओके, ऐसा नहीं है कि बस PhD में ही आप प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं. यू कैन डू इट ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, कर सकते हैं एज ए इंटर्नशिप, और यू कैन वर्क इन एनी लैब. आप किसी लैब में काम कर सकते हैं. डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू डू लाइक उनका जो काम है वो आप नहीं कर सकते, बट यू कैन वर्क अंडर देम. लाइक यू कैन गेट सम गाइडेंस फ्रॉम देम. आप उनसे चीज़ें सीख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें होती है, ऐसा ये सब करना होता है. आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं. सो दैट is something you can do during your graduating years. Okay, इसके बाद आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन था लाइक हाउ डू आई गेट टू नो इफ आई एम इंटरेस्टेड इन रिसर्च और नॉट। मुझे कैसे पता चलेगा कि सच में इफ आई एम इंटरेस्टेड इन रिसर्च इज दिस अ गुड प्लेस और इज दिस अ गुड करियर फॉर मी टू परस्यू। देन उसके लिए सी यू विल हैव टू आस्क सम क्वेश्चन टू योरसेल्फ। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने पड़ेंगे। अगर आपको उसका पॉजिटिव आंसर मिलता है देन ओके यू आर ओके वेलकम। अगर आपको उसका आंसर नो मिलता है देन यू विल हैव टू थिंक लाइक यू विल हैव टू रियली थिंक कि सच में मुझे इस फील्ड में आना है या नहीं। ओके सो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो करना है, as I have said, it's about the problem solving, it's about the finding a solution to something that is the problem of world. Okay, तो क्या आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्टेड है? डू यू रियली लव प्रॉब्लम सॉल्विंग? आपको या क्या आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है खुद में कि कोई तो कुछ भी या हाउ कैन आई से कोई भी वेरी वेग एग्जांपल दे दूंगी मैं कि कोई चीज़ है और हाउ कैन आई से दैट ओके आपको जानना है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्टेड है या नहीं, या ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके घर में कि ठीक है ऐसा कुछ हुआ है ओके आप कुछ भी कंसिडर कर लीजिए एक्स वाई जेड जो भी आपको रिलेटेबल लगता है। सो ऐसा कुछ हुआ है दैट यू ट्राई टू सॉल्व कि हाँ ठीक है ये मैं कर सकती हूँ या मैं करके देखती हूँ या फिर करके देखता हूँ ओके। अगर दैट इज ओके जो काम था वो किसी और का था बट आपने सोचा कि हाँ ये मैं ऐसा ऐसा करके कुछ कुछ तो इसमें हो सकता है ओके ये मैं कर सकती हूँ क्या। ओके सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफ यू लव प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो दैट शुड बी सॉल्व बाय मी, वो जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ। सो ऐसी अगर फीलिंग आप में है देन यू हैव पॉजिटिव आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब उसके बाद आप देखिए जैसे कि आप अभी 11th 12th 10th या आपका जो भी है वो आप पढ़ रहे हैं। देन पढ़ते पढ़ते देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बस ठीक है एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, हाँ एग्जाम के लिए टॉपिक पढ़ना है पढ़ लिया उसका कुछ ये नहीं है। बट इफ़ यू आर समवन कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं देन आपको इफ आई गिव यू एग्जाम्पल, इफ यू आर रीडिंग अ PCR रिएक्शन दैट इज द टॉपिक ऑफ योर क्लास 12th और 11th आई गेस। तो PCR रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं जिसमें क्या होता है एक DNA की हम बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ेंगे उसको लगेगा हाँ ठीक है अच्छा टॉपिक है वो स्किप कर देंगे। बट आप जब इसको पढ़ेंगे देन यू विल थिंक ऑन इट, अरे हाँ ऐसा भी कुछ होता है, ये कैसे होता होगा फिर, ये क्या मैं खुद से कर सकता हूँ कर सकती हूँ, ये मुझे खुद से करना है। अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है नॉट अबाउट दिस, आपका अगर कोई भी दूसरा टॉपिक है वॉट एवर ओके, आपको अगर ऐसी एक फीलिंग आती है कि हाँ ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये मुझे भी करना है मेरे हाथों से, मुझे ये होते हुए देखना है, देन you can be I should not say that but you are interested I should say in research okay। also अगर आपको कोई भी आपका एक कोई सब्जेक्ट है anything like chemistry bio maths, तो if you are interested in the in depth study जैसे कि हम बायोलॉजी में अगर आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं प्लांट्स की एनिमल्स की, देन आपको उसमें बहुत इन डेप्थ उसकी स्टडी करनी है। आपको ये भी लगता है कि हाँ ये जो चीज़ है वो मैं एकदम बेसिक से जानूँ कि एक्चुअली ये होता कैसा है एंड आई वॉन्ट टू सी इट प्रैक्टिकली। अगर ऐसी कुछ फीलिंग आपको आती है आपको लगता है देन यू हैव अ पॉजिटिव आंसर फॉर दिस। थर्ड क्वेश्चन एंड आई शुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स अबाउट योर फ्यूचर। अब थर्ड क्वेश्चन जो आपको पूछना है कि विल यू बी सेटिस्फाइड एज अ रिसर्चर, और जो रिसर्चर्स की लाइफ है क्या वो आपको पसंद है। देखिए रिसर्चर्स को मोस्टली फेम या पैसा भी अगर मैं कह दूँ तो उनसे उतना ज़्यादा ये नहीं होता, अट्रैक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पैसे से अट्रैक्शन नहीं है, एवरीवन वर्क्स फॉर मनी ओनली, बट अगर आपको लगता है कि सोसाइटी के लिए भी कुछ किया जाए मनी तो एज अ बाय प्रोडक्ट आ ही जाएगा ओके। देन ओके व्हाट आई वाज सेइंग ओके सो लाइफ ऑफ रिसर्च। सो अगर आप ऐसा रिलेट करते हैं क्योंकि रिसर्चर्स की लाइफ एज आई हैव सेड फेम और मनी से थोड़ा सा अलग होती है। ऑफ कोर्स दे एवरीवन वांट्स इट, एवरीवन यू नो सबको अच्छा लगता है अगर वो मिले तो, बट इसके अलावा वो जो उनका जो काम होता है मोस्टली लैब्स में होता है। अगर इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग, जिनको ट्रैवलिंग में बहुत इंटरेस्टेड मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है ओके,
जिंदगी भर घूमना ही। देन रिसर्चर की लाइफ जो होती है वो एक लैब के अंदर होती है, दे वर्क इन अ लैब। सो उनका जो स्पेस होता है वो मोस्टली एक बाउंडेड होता है, दे वर्क इन अ बाउंडेड स्पेस। उनके पास पेशेंस होता है एंड यू शुड हैव अ पेशेंस, वेरी गुड पेशेंस, ओके, इफ यू आर वर्किंग एज अ रिसर्चर। ओके, सो ओके, उनका जो स्पेस होता है वो बाउंडेड होता है, वो ज़्यादा सोशल लाइफ से उनका थोड़ा कम कनेक्शन होता है बट ओके, दे उनको जो अपना जो काम है उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस होते हैं, उनका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के ऊपर वो ज़्यादा फोकस होते हैं। देन थिंक इफ़ यू आर ओके, इफ़ यू लव टू लिव सच लाइफ, अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ मुझे ज़्यादा सोशल होना नहीं पसंद है, ओके, मुझे बस मेरा काम और उसी में इंटरेस्ट है, उसी में मुझे फोकस रहना है, देन ऑफ कोर्स यू शुड चूज। ओके, so these were some things that I wanted to tell you, that you should tick mark if answer is yes, then you can go for it, and anyways it's your decision। ये जो क्राइटेरिया है वो मैंने डेवलप किया है बीइंग यहाँ रहते हुए, अब जब 3 साल हो चुके हैं, देन कुछ तो सीखा होगा, तो उसी एक्सपीरियंस से मैंने रफ क्राइटेरिया बनाया है। दैट कैन बी वैरी अकॉर्डिंग टू यू, आपको क्या चाहिए लाइफ में, सो दैट कैन ऑफ कोर्स वैरी एंड यू शुड डू दैट। ओके, आपको करना ही चाहिए वो वैरी, क्योंकि इट्स योर लाइफ, योर थॉट्स, मेरी लाइफ, माई एक्सपीरियंसेस आर सो डिफरेंट दैन योर्स, सो डेफिनेटली यू कैन चेंज इट, यू कैन डू चेंजेस अकॉर्डिंग टू यू। ओके, अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज वॉच इट, आई होप दैट विल हेल्प यू समवेयर। ओके, एंड ऑफ कोर्स इट्स योर डिसीजन, गो फॉर इट। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, यही बताना था मुझे इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है देन गिव मी अ लाइक, इफ यू रियली लर्न समथिंग न्यू थ्रू दिस वीडियो देन शो योर लव सपोर्ट इन द कमेंट सेक्शन बाय गिविंग लाइक, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स who wanted to join IISc, IISER or any research institute. So that's it for today. I'll see you soon in the next video. Till then, take care of yourself, keep learning and stay fabulous. And okay, one more thing, if you want something else next video, like on which topic should be the next video, then comment me that in the comment section. Okay, bye bye.